A very good morning to all the eLearn viewers and participants. Today, at the advent of May, we are going to present the 21st session of the Expert Talk. Here in Expert Talk, some of the participants come and use this platform to exhibit their own expertise. And today, it's a day of Three Shakti, SSS, sweet, smart, and somber. Yes, today I'm going to introduce two fantastic ladies who have done so well in their own personal lives and professional lives, in their careers. Our first presenter is going to be Simple Jaiswal, who probably needs no introduction, but yet for the new ones, I'd like to tell that she is a founder of Making a Difference. Imagine the name is Making a Difference, so you can well understand what she's going to bring to the table. Making a Difference, she's a certified life coach and career returners coach. Yes, you heard me right. There are so many of us who, due to whatever circumstances, have to give up our careers, maybe due to a childbirth, due to family engagements, or could be anything else. She helps people like us return to the careers and also help them deal with the challenges that come along with it. To gain identity. She's a life coach and she helps us fight all the doubts that keep stopping us. Today, her topic is the basics of LinkedIn. So without wasting any time, I'll let her say more about herself. Welcome, Simple Jaiswal. Thank you, Sunita ji. A very, very good morning to all the people present here. I'm glad here. I'm glad to speak on this forum today. I'm glad that all of you could make it and you're using your Sunday morning to be present here and to learn something. That is a great sign of, somebody who wants to grow in their life, somebody who wants to move ahead in my life. So Sunita ma'am has already given my introduction. Very briefly, I want to say, as she has mentioned, I'm a life coach. I help career returners get back on career track. Very much women like you and me, because of some reason, if there is a gap in their career, I help them coming back and starting their career. Prior to this, I have been into HR for 22 years and also been a faculty for MBA students. So I'm sorry, I missed that. That's why, it is best from you. Thank you. So that's why, being closely working with, people of all age group, from students to women to people to middle-aged, I understand, this is something so important for an identity of a person. You are known by the work that you do. And that's why today I'm here talking about LinkedIn, which is a very important platform to be on if you are somebody who is having any kind of career, any business, and even if you are a student. For anybody who is doing some work or having some career, they need to be present on LinkedIn. So today I would be presenting something on the basics of LinkedIn, right? Before I start, I would just want to know from all of you as to how many of you have account on LinkedIn today, just to get an idea. Okay, 2 have raised hand, 3. Yeah, I can see quite a lot of them have. Okay, great. Without further ado, I will start with my presentation. So what I have done is
I have got a presentation so that, I do not miss out certain points. And also I will be swapping with my screen. Matlab, I will be showing my screen, my account, and maybe few more, so that I can actually show you how it is done. Okay. Will So, you also talk about, will you also talk about sometimes when you log in from 2 different phones or something? I think sometimes they get very rigid about, passwords and things like that. Will you tell us how to deal with that? Because I'm dealing with that problem also. yes. Okay. So I will start sharing my screen. Are you able to see my screen? Not yet. Not yet. I think there's some setting change. Setting change हो गया. Take your time. Don't worry. I think so we did some. या सिंपली आप वो शेयरिंग पे जाएंगे ना, हाँ. तो वहां पे वो बेसिक वाले पे आओ आप, और फिर वो करो. आप एडवांस वाला दिख रहा होगा ना आपको. करेक्ट, एडवांस वो दिख रहा है. हाँ, वो बेसिक पे जाइएगा, बेसिक पे जाइएगा. कहाँ है? Else if you are facing some issue, share this PPT with me. Basic, हाँ, I came to the basic and then why this one? No, still sound got is shared. I got it. Yeah, Yes, is it visible now? absolutely. Yes, it is. Yes, yes. Okay, fine. Okay, so as I said, we will start with LinkedIn, and today I'm going to cover from the basic because I understand if some people are keen to have an account in LinkedIn, so that's why I'll be covering from the start. Okay, so what is LinkedIn? So if you know that LinkedIn is also a social media platform, you all would be using social media platform like Instagram, Facebook, Twitter. So similarly, is LinkedIn a social media platform? But it is little different from these medium because this is totally about your business. It's totally about your career. It's only work related. It's not just work. And it's a very powerful medium because it said ki if you are surfing internet and if you are going through maybe Facebook or Instagram, people say it is wasting your time, but it's not that case in case of LinkedIn. Even if you scroll for maybe 10 minutes, you get some value addition, you get some knowledge, you get some updates, because the kind of content that is available in LinkedIn is quite different from what is there in Insta or Facebook. So therefore, it is a powerful medium, and you will find influencers over here. Okay, so as I said, why LinkedIn? Why you should be on LinkedIn? Because this is a place where you can make professional connections. Like you would say, you have a lot of connections on FB or Insta, but somewhere somebody who is visiting Instagram is moreover to connect, but it not in the sense of, furthering their professional career. When you are coming on LinkedIn, you're coming with this intention that you want to connect with people, maybe in a similar field or in a different field. So the objective is purely professional when you're coming to LinkedIn. Then job opportunities.
So if you are somebody who is working with any organization, or if you are a student, this is a right place where you should be available, because lot of I would say almost all the organizations would have an account, a recruiter's account on LinkedIn, where LinkedIn becomes the first place where we go and search resumes for a candidate whenever there is an opening. So I have been into HR for a long time. So even when we get resume of a candidate from Naukri, we still go and check the profile of the candidate over LinkedIn, because as I said, this is a professional medium where you would have people's professional details, and we will be able to see the activity that the person does over LinkedIn. So it is speaking much more than what your resume would speak. So if you are also interested in looking for job opportunities or changing jobs or furthering your career, this is a place where you need to be. And also business opportunities. So if you are starting out as an entrepreneur, or if you are already an entrepreneur, if you are an organization, mid-sized organization, whichever, every organization also has an account over here. They have a business account over LinkedIn, because this is a place where you can further your business connections. You can have conversations over this. You can have meetings. So a lot of things that can be done for business promotions also over here. And then branding. So if you are an entrepreneur, if you're a solopreneur, you're starting up, you are a freelancer, you are somebody who provides services to different clients. So this is a place where you can brand yourself, because this is considered to be a medium which speaks about you. So if somebody has to have a deal with you, or somebody wants to hire you for any services that you provide, they would want to go and check your LinkedIn profile, your connection. They would want to check the reviews about your services. So this is a platform for your branding also, if you're working as an individual or as an organization. So therefore, it's a platform which helps in your furthering of your career. तो इसलिए जैसे मैंने बताया कि हर पर्सन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप या तो प्रोफेशनल हो, या बिजनेस में हो, या जॉब में हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, तो सभी के लिए लिंक्डइन में अकाउंट होना इज लाइक हेल्पिंग इन योर करियर। ओके, तो जैसे आप बहुत सारे लोगों ने बोला कि उनका लिंक्डइन अकाउंट है, सो दैट्स ओके, बट जिनके पास लिंक्डइन अकाउंट नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि linkedin.com में आप जाएंगे, तो ये आपको फर्स्ट स्क्रीन मिलेगा। तो ये जो आपको रेड दिख रहा है, ज्वाइन नाउ, दिस इज अ प्लेस। अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट नहीं है तो ये वाला बटन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको सेकेंड स्क्रीन मिलेगा जो आपको पूछेगा, इट विल आस्क यू, अगर आप ऑलरेडी आप ईमेल, यू कैन यूज वन ईमेल एंड हैव अ पासवर्ड, जैसे आप किसी भी चीज का अकाउंट खोलते हो, या फिर यू कैन ज्वाइन विथ योर ओन गूगल अकाउंट, ओके, और या फिर है अगर अकाउंट तो साइन इन से आप ज्वाइन करते हो। तो दिस इज अ वेरी बेसिक फर्स्ट स्टेप। linkedin.com में आप जाएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, ओके। अभी अकाउंट क्रिएट होने के बाद नाउ आई विल शो माय प्रोफाइल। अभी मैं अपने प्रोफाइल पे भी जाऊंगी और आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला चीज, जब लिंक्डइन अकाउंट खोलते हैं, जब आप लिंक्डइन अकाउंट यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो आपको ऐसा, जैसे कि आप कहीं भी अकाउंट ओपन करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अबाउट योर एजुकेशन, अबाउट योर डिटेल्स, तो वो सब आप फिल करेंगे और आपका अकाउंट बन जाता है। वेरिफिकेशन के लिए वो भेजेगा आपके मेल के ऊपर, ऑल दोस प्रोसेस विल हैपन, फिर आपका अकाउंट ओपन होता है। अकाउंट ओपन होने के बाद सबसे पहला चीज है कि ये प्रोफाइल पिक्चर जो आपके लिंक्डइन अकाउंट पे दिखता है, तो ये कैसा होना चाहिए प्रोफाइल पिक्चर, मैं इसके बारे में थोड़ा बात करूंगी, उसके बाद आई विल गो टू माय अकाउंट एंड शो यू। तो प्रोफाइल पिक्चर इज द फर्स्ट थिंग, जिसका जब भी लिंक्डइन अकाउंट देखते हैं सबसे पहले नजर उसकी पर्सन की पिक्चर पे जाती है। तो पिक्चर हमेशा हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए, उसका क्वालिटी हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, हेजी नहीं हो सकता वो। प्रोफेशनल ड्रेसिंग, नाउ द ड्रेसिंग कैन नॉट बी कैजुअल, इट हैज टू बी प्रोफेशनल, यू नो। प्रोफेशनल ड्रेसिंग मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ड्रेसिंग, okay, and a smile on the face, because it is said this picture that you put in, it speaks a lot about you, this is what connects with you। मैं सबसे पहले जब कोई पिक्चर दिखता है आपका, तो वो एक कनेक्शन पॉइंट होता है। तो आप यहाँ पे देख लो, दिस इज अ रॉन्ग पिक्चर यहाँ पे, क्योंकि देयर इज नो आई कॉन्टैक्ट,
there is no professional dressing, there is no clarity. So this is a very casual picture. मतलब ये पिक्चर आपका फेसबुक में चल सकता है, आपका इंस्टाग्राम में चल सकता है, but this cannot work in your LinkedIn profile. So this is a kind of picture, and it is said it does not require a full picture नहीं चाहिए आपकी, बोलते हेड शॉट होना चाहिए, मतलब शोल्डर से ऊपर जो भी आपका है फेस पूरा प्रॉपर नजर आना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्माइल दिखना चाहिए, थोड़ा सा आपका फॉर्मल ड्रेसिंग दिखना चाहिए. सो दिस इज द वे इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ अ प्रोफाइल पिक्चर. यहाँ पे एक टिप ये है कि जो भी आप पिक्चर आप डालना चाहते हो लिंक्डइन में, हाउ डू यू चेक कि वो सही है कि नहीं. तो आप photofeeler.com यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो आपका फोटो. देयर 3 पैरामीटर्स जिसपे ये इसको रेट किया जाता है. फोटो लाइकेबिलिटी, मतलब कितना लोग आपको लाइक करेंगे आपकी पिक्चर देखने के बाद. इन्फ्लुएंस, ये पिक्चर से इन्फ्लुएंस का वो, डज इट शो इन्फ्लुएंस, डज इट शो कॉम्पिटेंस. कॉम्पिटेंस मतलब आपकी कैपेबिलिटी, बिकॉज एज आई सेड लिंक्डइन इज ऑल अबाउट प्रोफेशन, इट्स ऑल अबाउट वर्क. तो इसीलिए दिस पिक्चर हाउ मच इज इट स्पीकिंग अबाउट कॉम्पिटेंस. तो ये 3 फैक्टर लाइकेबिलिटी, इन्फ्लुएंस और कॉम्पिटेंस पे रेटिंग देता है. इट विल गिव यू अ रेटिंग ऑन दिस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो यू कैन डिसाइड कि वो पिक्चर में अगर सभी पैरामीटर्स पे रेटिंग अच्छी है तो वो पिक्चर ठीक है. अगर आपको लग रहा है कि वो पैरामीटर्स पे रेटिंग कम है, देन मे बी यू वांट टू चेंज द पिक्चर. ओके, नाउ आई विल गो टू माय लिंक्डइन अकाउंट एंड आई विल ट्राई टू शो. Is the rating visible? हाँ, रेटिंग दिखता है आपको. यू आर एबल टू सी द रेटिंग व्हेन यू गो टू दैट, एंड देन यू कैन डिसाइड ऑन द पिक्चर. सो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद 2-3 पिक्चर्स दैट यू वांट टू पुट, एंड फिर आप डालो उसमें. ठीक है, तो आपको सबको मेरा अकाउंट दिख रहा है? No, नहीं दिख रहा है. you need to share screen or share that particular browser. ओके, सो अगेन आई नीड टू शेयर क्या दिस वन? आप हाँ शेयर बटन पे जाएं और फिर से करें, शेयर स्क्रीन कर दें, तो बार बार आपको दिक्कत नहीं होगा. शेयर स्क्रीन, आपने पहले पीपीटी शेयर किया होगा. करेक्ट करेक्ट, मैंने हाँ न्यू शेयर में जाऊंगी मैं. हाँ जी, न्यू शेयर एंड शेयर कंप्लीट स्क्रीन. अच्छा, तभी वो नहीं दिख रहा है. ओके, अभी दिख रहा है? या हाँ, ठीक है. सो आई विल जस्ट ट्राई टू शो माय प्रोफाइल हियर सो दैट कि थोड़ा आइडिया आपको मिलेगा. तो व्हाट आई विल डू, इसके पहले मैं प्रोफाइल पे थोड़ा दिखा देती हूँ, देन आई विल गो बैक टू द पीपीटी सो दैट इट विल बी अ रिविजन ऑफ व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट. ओके, ठीक है. सो एज आई सेड द प्रोफाइल पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, clarity, headshot, professional dressing and a smile. Okay, and then this is the part, this is called as banner, you know, or the cover. ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ब्लैक में, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बेसिकली दिस इज ऑल्सो समथिंग विच टेल्स अबाउट यू, हु आर यू. तो जैसे मैंने अपना यहाँ पे लिखा, आई हेल्प women गेट बैक ऑन करियर ट्रैक आफ्टर ब्रेक, आई एम अ करियर रिटर्नर्स कोच. एंड यहाँ पे इफ यू आर अ पर्सन हु इज हैविंग योर ओन बिजनेस, ओन ऑर्गेनाइजेशन, तो यू कैन पुट योर वेबसाइट और एनी काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑल्सो ओवर हियर. इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तब आप क्या करेंगे, तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो यहाँ पे मे बी आपके ऑर्गेनाइजेशन का कुछ फोटो या कुछ पंच लाइन वो आप डाल सकते हो. ओके, बट इफ यू आर एज एन इंडिविजुअल यू आर वर्किंग, देन यू कैन पुट इट फॉर योर ओन बिजनेस वॉट एवर इज एप्लीकेबल. तो दिस इज अ बैनर, तो इसको आप क्रिएट कर सकते हैं कैनवा पे. यू कैन क्रिएट द बैनर ऑन कैनवा बिकॉज देयर इज अ डायमेंशन दैट यू नीड टू फॉलो फॉर दिस. डायमेंशन फॉलो करना होता है. सो दिस इज अबाउट प्रोफाइल पिक्चर एंड दिस बैनर. उसके बाद यहाँ पे जो है, दिस इज कॉल्ड एज हेडलाइन. ये हेडलाइन जैसे आप देखोगे एफबी में भी देयर इज एन ऑप्शन टू पुट अ हेडलाइन बिलो योर नेम. तो पहले तो आपका नाम आएगा, जब अपने फॉर्म में जब आप लिंक्डइन में साइन इन करते हो तो वॉट एवर नेम यू आर गिविंग वो नाम यहाँ पे आएगा. उसके बाद आपने वहाँ पे अगर कुछ डेसिग्नेशन दिया है तो डेसिग्नेशन वहाँ पर आएगा. बट देयर इज एन ऑप्शन, मतलब आपके पास कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का लिमिट रहता है. तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वी कैन ऐड मोर वर्ड्स, बिकॉज वेन एवर एनीबडी सर्चिंग फॉर यू, जब भी कोई आपको सर्च करता है तो वो कीवर्ड से सर्च करता है. बिकॉज लिंक्डइन इज ऑल्सो प्लेस जहाँ आप किसी को सर्च कर सकते हो उसके नेम से, अगर आप उसको जानते हैं. बट अगर नेम से नहीं जानते हैं, सपोज
I want to hire a software developer. तो maybe I would search as a software developer with that designation. तो अगर यहाँ पे वो designation रहेगा तो आप search में you will be coming there. और if I'm searching for any person in sales, तो अगर यहाँ पे वो keyword sales रहेगा, या if I'm searching for somebody who is into content writing, तो अगर वो keyword यहाँ रहेगा तो वो search में आएगा. तो basically this gives you an option to write who are you, first of all, who are you, what do you do, and whom do you help. These three things should come. Who are you, what do you do, and whom do you help. Like I have written here, I'm a life coach, and then I also wrote coach for career returners, because yes, I want कि whenever somebody search for life coach, or whenever they search for a coach, or whenever they search for something related to career, I should be coming on the search. So I write that word, career returners, then working professionals, job seekers, because I also want कि job seekers is also a category that I want to help. तो वो keyword भी मैंने add किया. Helping them with career challenges, helping growth oriented SMEs to build entire ecosystem. मतलब किसको आप help कर रहे हैं and for what? To build entire HR ecosystem. So HR भी मैंने डाला because that is also keyword for me to scale the organization. And also then I added content writer because this is also something which I want to be searched for. So basically ये headline है. This is a very important part of your profile because this will ensure कि whenever there is a search, will you be able to come in that search or not. तो जो भी आपके की skills हैं, अगर आप freelancer हैं या अगर आप independent business entrepreneur हैं, तो वो जो भी keywords हैं आपके business से related वो आपको यहाँ पे add करने चाहिए. And there is an option talks about, मतलब what do you talk about. So whatever is my topic related to that I added here. Then you can add a contact information and then the website detail. Okay. Agar if you are an employee, as I said, you here your designation, your organization will come over here, and कोई भी और keyword अगर आपका है, because maybe you are doing a side hustle या you want to be searched, वो यहाँ पे आएगा. Okay. And यहाँ पे एक है add profile section. I will click on this and मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या आता है. तो ये profile section में आप once I will just show you. हाँ, तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन आता है. सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस एजुकेशन इट विल हेल्प मी टू ऐड द डिटेल्स. पोजीशन आपके यहाँ पे देखिए करियर ब्रेक, ये नया फीचर है लिंक्डइन का, वेयर अगर आपका कोई करियर ब्रेक है सो यू कैन ऐड दैट आल्सो ओवर हियर. इट गिव्स यू द ऑप्शन टू ऐड लाइक दिस. ओके, तो टाइप में मतलब इसमें ड्रॉप डाउन दिया है कि किस कारण से ब्रेक हुआ, वो ड्रॉप डाउन है आपका. फिर लोकेशन कौन सा है आपका, फिर स्टार्ट मंथ, ये सब. सो ऑल दिस डिटेल्स यू विल फिल अप एंड देन यू विल से सेव. ओके, तो इस टाइप से इस प्रोफाइल सेक्शन में आप जाएंगे तो स्किल्स ऐड कर सकते हैं आप. बहुत सारी चीज, सब डिटेल्स यहाँ पे यू कैन ऐड द कोर्सेज जो आपने किए, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन. एडिशनल में आप देखोगे कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस है तो वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे. नाउ वॉलंटियर एक्सपीरियंस क्यों ऐड करना चाहिए, बिकॉज volunteer experience shows कि you are interested in not only your career but you're also interested in giving back to society. So this is also helping. Suppose you are you're an employee or a student, तो ये help करता है आपके प्रोफाइल को additional marks मिलने में, additional weightage के लिए. Publication, तो अगर कुछ पब्लिकेशन आपके नाम पे है, anything that you have published, article, book, whatever, patents, projects, तो इसमें lot of things are there which you can add. Languages, so suppose you know languages, हिंदी, इंग्लिश, whatever, मराठी and lot of other languages, तो वो भी ऐड करें. स्पेशली अगर वो आपके प्रोफाइल के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है और प्रोफाइल के लिए रेलेवेंट है, तो उसको जरूर ऐड करें. और ऐड ऑर्गेनाइजेशंस, ऐड द कॉजेस, मतलब विच कॉज यू सपोर्ट. तो नाउ आई विल शो यू हाउ डज इट लुक लाइक व्हेन यू ऐड द डिटेल्स. Okay, now this is something called as featured section. ये एक सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं featured. Featured मतलब अभी ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज this talks about again about what you are, what do you do. So like you would see, मैंने featured section में बहुत यहाँ पे आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, आपके कुछ इवेंट होंगे वो ऐड कर सकते हैं, आर्टिकल्स ऐड कर सकते हैं. There are options to add. यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है आपको. तो पोस्ट, जो भी आपने पोस्ट किया लिंक्डइन पे, यू कैन ऐड दैट.
आपके आर्टिकल को ऐड कर सकते हैं, कोई लिंक ऐड कर सकते हैं. इफ देयर इज अ लिंक, सो मे बी जैसे अगर वेबसाइट का लिंक है या कोई और लिंक है, यू कैन ऐड दैट. मीडिया में यू कैन ऐड द इवेंट, यू कैन ऐड द वीडियोज. ओके, सो एंड देयर इज एन ऑप्शन टू एडिट ऑल्सो. सपोज जैसे अभी मैंने इतने सारे ऐड किए, जनरली बोलते 3 या 4 ही ऐड करने चाहिए. लाइक आई हैव एडेड लाइक 4-5 ऑफ देम. तो बाद में आई कैन एडिट एंड आई कैन रिमूव ऑल्सो. मतलब अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको जाके एडिट कर सकती हूँ और रिमूव कर सकती हूँ. तो दिस इज फीचर्ड सेक्शन. तो फीचर्ड में इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको व्हाट डू यू वांट टू शोकेस टू पीपल, वो आप ऐड करें. आपने कभी कोई प्रोजेक्ट किया है या आपका कोई प्रेजेंटेशन है, वो ऐड करो. रेज्यूमे, नाउ अगर इफ यू समबडी लुकिंग फॉर अ जॉब और समबडी वांट्स टू चेंज द जॉब, तो वो यहाँ रेज्यूमे भी ऐड कर सकते हैं. तो दिस इज वन ऑप्शन वेर यू कैन शोकेस योर रेज्यूमे इफ यू आर कंफर्टेबल. ओके, नाउ दिस एक्टिविटी सेक्शन, ये जो सेक्शन है, दिस इज अबाउट द पोस्ट. जो भी पोस्ट मैंने किया, जो लेटेस्ट पोस्ट है सबसे ऊपर दिखता है वो, तो ये अपने आप ही आता है. तो एक्टिविटी जो भी आपके पोस्ट रहेंगे वो सब यहाँ पे दिखते हैं. तो शो ऑल एक्टिविटी करेंगे तो आपको सारा पोस्ट आपका दिखेगा. नाउ दिस इज अबाउट सेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. सो अबाउट सेक्शन इज लाइक आपके रेज्यूमे में जैसे आप समरी लिखते हो अपना, राइट, लाइक अ समरी ऑफ 1 पैराग्राफ अबाउट यू. तो दैट इज व्हाट कम्स ओवर हियर. यहाँ पे लिखा है यू कैन राइट अबाउट years of experience, industry skill and achievement in the previous job. So this is like gives you some number of characters to write about your profile and then you say save. तो यहाँ पे 2 फॉर्म से लिख सकते हो, या तो आप स्टोरी फॉर्मेट में लिख सकते हो या फिर आप जस्ट एक समरी लिख सकते हो. Now this all depends who you are, you know, if somebody is into like a coach or this kind of profile, so maybe people want to write in a way of story ki what was I doing, how did the change happen, how did I come into coaching, what am I doing now, what is my mission. तो वो एक story form में लिख सकते हैं. But अगर आप if you are an employee, तो maybe you may not want to write like a story, you may want to write like a आपको bullet point या फिर एक summary की जैसा आपको लिखना हो. रेज्यूमे का जो समरी है, मे बी यू कैन ऐड दैट ओवर हियर बिकॉज दिस टेल्स अबाउट एवरीथिंग. मतलब इफ आई एम अ रिक्रूटर, आई विल, मैं सिर्फ इतना पार्ट अबाउट यू देख के मुझे आइडिया होगा कि व्हाट डू यू डू और व्हाट हैव यू डन टिल नाउ, आपके अचीवमेंट्स क्या है. तो यहाँ पर आपका स्किल, आपका अचीवमेंट आएगा. नाउ दिस इज अ सेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस. तो दिस इज विद ऑल द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जहाँ आपने काम किया है वहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप. लाइक अभी जो भी मैंने ऐड किया अभी तक का, आई हैव एडेड ऑल दिस experience, total 8 experiences I have shown. Now it is up to you what experience you want to show. Okay, and you can edit this. ये पेन साइन आप देख रहे हैं, ये एडिट करने के लिए होता है. So whenever, and यहाँ पर मीडिया भी ऐड कर सकते हैं. Like you can add picture, you can add the link, you can add the video, ये सब ऐड कर सकते हो आप. मैंने फिलहाल तो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक just add the time when I was there, what was I doing, मेरा रोल क्या था, all that. So this is one section where you can add, since you started your career, what all have you been doing. So this is about experience. Then comes your education. तो एजुकेशन में जैसे जैसे आप अगर अपने आप का क्वालिफिकेशन ऐड कर रहे हैं तो यहाँ ऐड करते जाएंगे. तो राइट योर इंस्टीट्यूशन, wherever you passed out, year, मतलब all the details. This is quite easy, but add all the education. ये important है. Now don't miss, lot of people I see they do not write education, but ये काफी important होता है education लिखना, because this is also one criteria, especially if you are a working professional. This matters because this is relevant to your profile. And also if you keep on adding to your profile in terms of gaining new degree or something, तो उसको जरूर दिखाएं, because उससे मालूम पड़ता है कि you are interested in upgrading yourself. Then there is license and certification. तो lot of, बहुत सारे हम training courses करते रहते हैं, certification करते हैं, तो keep on adding those certifications. तो LinkedIn profile ऐसा है कि it is not like आज बनाया and it is going to work. You have to keep on updating that. Maybe every 3 months you should see कि क्या नया हुआ जो मुझे अपडेट करना चाहिए, या फिर क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव चेंज होता है. मे बी टुडे यू आर नॉट लुकिंग फॉर असाइनमेंट, बट टुमारो, कल आप असाइनमेंट देख रहे हो, तो उसमें क्या क्या चीज रेलेवेंट है जो मुझे अपडेट करना चाहिए.
तो keep on updating this license, certifications, all this over here. Volunteering activity, कुछ जैसे मैंने बताया, volunteering activity is very positive thing about any person, तो वो भी यहाँ पे ऐड करें आप, कोई भी volunteer experience होगा आपका वो. फिर यहाँ पे skills, now this is so important, you know, besides your knowledge, skill is something which is again one important criteria for you to get any assignment. तो अगर आप entrepreneur हो या individual हो या job seeker हो, तो ये skill बहुत जरूरी. तो यहाँ पे you have the option to add 50 skills. So you can add number of skills. अभी जैसे इसमें 31 है. So now when you are adding skills, it is that don't add anything and everything. Conflicting skills नहीं add करना चाहिए. इसमें you can add relevant skills to your role. Okay, and there's an option to get endorsed by people. So like there would be some people who have endorsed you for particular skill. मतलब especially people जिनके साथ आपने काम किया है. Like I worked with this person, तो इसने मुझे endorse किया कि हाँ talent management is something which I am skilled on. तो इस टाइप से आपके भी जैसे यहाँ पर 31 skills दिखाएगा जो मैंने ऐड किया है this way. So और इसको सबको आप edit कर सकते हो. There is a this pen kind of sign, तो आप सबको edit कर सकते हो. Whenever you are upgrading, keep on adding to this, keep on upgrading this. Now this is recommendation. Recommendation मतलब जिसके साथ भी आपने काम किया, जैसे इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने काम किया, तो आप उनसे recommendation मांग सकते हो. You can write to them for asking recommendation. Also you can give recommendation. तो वो यहाँ पर आता है. मतलब you can ask recommendation only to those people जिनके साथ आपने काम किया या जिसके साथ आपका किसी भी तरह का interaction हो या आपने किसी के साथ business किया. Okay. So they write about you and also you can give recommendations. So this is all the recommendations that I had got some point of time, and then some recommendations जो मैंने दिया था. Okay, so you can do addition here, मतलब you can ask. तो यहाँ पे देखिए प्लस साइन में मैंने क्लिक किया तो ask for recommendation और give a recommendation. तो अगर मुझे बोलना है ask for recommendation, तो if I select somebody's name, okay, ask for recommendation, तो बोल रहा है search. अभी जिसको मुझे ask for recommendation करना पूछना है, तो that person should be in my contact. वो मेरे कनेक्शन में अगर नहीं है तो I cannot ask for recommendation. Okay, so suppose I give example of कुमार जी. Okay, तो मेरे कांटेक्ट में है, so I will be able to see him. See, I'm able to see him. ठीक है. So then बोलेगा continue, and then it will ask me how do I know him. So I have to tell him how do I know him, whether I do business, whether I was studying together, whether I was working together. वो relationship बताना है. तो connection होना चाहिए और relationship बताना होता है. और उसके बाद आप इसको आगे भेज सकते हो. तो इट इज लाइक अ मेल के जैसे उनको मैसेज जाएगा, मैसेज उनके ईमेल पे जाएगा बॉक्स पे, और ही विल गिव द रिकमेंडेशन. तो इस टाइप से यू कैन आस्क रिकमेंडेशन. फिर मैंने दिखाया था प्रोफाइल सेक्शन में कि लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं आप, तो लैंग्वेजेस ऐड करेंगे, उसमें प्रोफिशिएंसी लेवल ऐड कर सकते हैं. फिर इंटरेस्ट, यहाँ पे देयर इज एन ऑप्शन टू ऐड इंटरेस्ट एरिया, किसको आप फॉलो कर रहे हैं. फिर causes that you support, तो causes में भी there will be a drop down, तो you can add कौन कौन से causes को आप support करते हैं. तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख रहे हो, एनिमल वेलफेयर, आर्ट एंड कल्चर, चिल्ड्रन एजुकेशन, एनवायरमेंट, ऑल दिस. ओके, सो whatever causes you are supporting you can add this. तो एक तरह से ये सारा डिटेल्स यू हैव टू फिल अप. और जैसे मैंने ये आपको दिखाया था यहाँ पर, ये ऐड प्रोफाइल सेक्शन, यहाँ पे आप देखेंगे वो सारे चीज आपको ऐड करेंगे, एजुकेशन, पोजीशन, स्किल, रिकमेंडेशन, एडिशन. तो ये सारे हैं जो मैंने आपको अभी बताया नीचे जो, तो सारा आप यहाँ से जाके सब ऐड करोगे तो वो वहां दिखता जाएगा. और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप डायरेक्टली वहां जाके भी आप ऐड कर सकते हो. ये प्लस साइन रहता है ऐड करने का, और ये वाला साइन रहता है इसको कुछ एडिट करने के लिए. सो दिस इज अ वे यू क्रिएट योर एंटायर प्रोफाइल ऑन LinkedIn. Okay, now let me go to my presentation. ये presentation दिख रहा है अभी? हेलो? नहीं, सिंपल नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा है. आई थिंक फिर से इसको शेयर करना पड़ेगा. वो स्विच करने से आई थिंक वी हैव दिस इशू.
आई थिंक सो आई विल बी हियर, पहले यहाँ का कंप्लीट करके देन आई विल गो देयर, ठीक है? Okay. हाँ, नाउ आई वांट टू शो यू कि वेन एवर यू ओपन योर, तो आपने ये प्रोफाइल क्रिएट किया और ये सारे डिटेल्स आपने ऐड कर लिए। अभी जब लिंक्डइन अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या क्या टैब दिखता है, दैट आई वांट टू शो यू। यू सी होम, माई नेटवर्क मतलब आपके कनेक्शंस, फिर जॉब्स, मैसेजेस। तो जैसे कि आपको इनबॉक्स में आपके मैसेजेस आते हैं, देयर इज एन ऑप्शन वेयर यू कैन सेंड मैसेज एंड यू कैन रिसीव मैसेज और नोटिफिकेशंस। ओके, सो आई विल क्लिक ऑन होम एंड आई विल शो यू। हाँ, तो जब जैसे आप लिंक्डइन अकाउंट सेटअप होने के बाद, जैसे एवरीडे व्हेन यू ओपन योर लिंक्डइन अकाउंट, दिस इज व्हाट विल शो टू यू। ये होम वाला आपको दिखेगा, जहाँ पे यहाँ साइड में आपको आपका प्रोफाइल दिखेगा, ठीक है? और फिर आपको ऑप्शन क्या, मतलब एवरीडे व्हाट डू यू डू ऑन लिंक्डइन, हम क्या करेंगे लिंक्डइन पे। तो जैसे कि फेसबुक पे हम लोग पोस्ट करते हैं, सो सिमिलरली आप पोस्ट कर सकते हैं। यू कैन राइट समथिंग, ओके, just I'm just doing an experiment here, not doing any writing because late हो जाएगा। So you can post, तो यहाँ पे ऑप्शन है फोटो ऐड करने का, वीडियो ऐड करने का, डॉक्यूमेंट ऐड करने का, all these things there is an option to add like Facebook and then you say post, okay, so discard, okay, so ऑप्शन ये है कि आप पोस्ट कर सकते हैं, आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं, you can also write an article। नाउ पोस्ट में क्या होता है, 1500 वर्ड्स का लिमिट होता है। तो अगर आपका पोस्ट 1500 वर्ड से ज्यादा है तो उसको हम आर्टिकल में जाके लिखेंगे, सो दैट वो मतलब थोड़ा पार्ट दिखाएगा एंड द कंटिन्यूएशन विल हैपन इन द आर्टिकल। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज आर्टिकल अगर 1500 वर्ड से एक्सीड होता है। सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डू एवरी डे, यू डू योर ओन पोस्टिंग, या फिर यू कैन सी द पोस्ट विच इज विजिबल टू यू। नाउ मेरे कनेक्शंस में जो जो लोग हैं, नाउ कनेक्शंस ऑन लिंक्डइन आर लाइक फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड कनेक्शन, थर्ड कनेक्शन, ओके। तो जैसे दिस इज माय फर्स्ट कनेक्शन, तो उसने जो भी पोस्ट किया वो मुझे दिखता है। लाइक फेसबुक में भी आपके जो कनेक्शंस है उनका आपको पोस्ट दिखता है, या जो स्पॉन्सर्ड होता है वो दिखता है। तो सिमिलरली मेरे कनेक्शंस के पोस्ट मुझे दिखेंगे ऐसे। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन लाइक द पोस्ट, आई कैन कमेंट द पोस्ट, आई कैन शेयर दिस पोस्ट, और आई कैन ऑल्सो सेंड दिस पोस्ट टू समबडी, वेरी मच लाइक फेसबुक। फेसबुक के जैसे है यहाँ पर भी, जहाँ पे आप पोस्ट को शेयर, लाइक, सेंड, ये सब आप कर सकते हो। तो दिस इज वे यू सी। तो आप क्या करेंगे, या तो आप पोस्ट करेंगे या तो यू विल शेयर एंड लाइक अदर पीपल्स पोस्ट। और देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, और यहाँ पे आप देखो लिंक्डइन न्यूज। तो लिंक्डइन की तरफ से भी कुछ अपडेट्स आते रहते, न्यूज आते रहते हैं। तो दिस इज, ये भी आप पढ़ सकते हो, इफ दिस इज ऑफ योर इंटरेस्ट टू यू, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स है, बट टुडे आई एम जस्ट कवरिंग बेसिक वंस। लाइक इसमें अगर आप देखोगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लिंक्डइन लर्निंग, मतलब लिंक्डइन की तरफ से देयर आर सर्टेन शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विच आर अवेलेबल, बट मे बी आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ता है। फिर एज अ रिक्रूटर यू कैन पोस्ट अ जॉब, तो इसके लिए भी यू हैव टू हैव अ सब्सक्रिप्शन फॉर दैट। सो देयर आर वेरियस सर्विसेज विच आर अवेलेबल थ्रू लिंक्डइन ऑल्सो। यहाँ पे भी अपना पेज क्रिएट कर सकते हैं आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू फॉर योर बिजनेस। तो यहाँ पे लिंक्डइन बिजनेस सर्विसेज भी है। तो वी विल मे बी टॉक अबाउट दिस सम टाइम लेटर ऑन, बिकॉज लिंक्डइन आपके बिजनेस को प्रमोट करने में भी हेल्प करता है। एंड जैसे कि फेसबुक लाइव सेशन होता है, वैसे ही लिंक्डइन पे भी लाइव सेशन हो सकता है, ओके। मैसेजिंग ये आपको बताया था, दिस इज लाइक इनबॉक्स। तो आपको एक इनबॉक्स मिलता है, तो इनबॉक्स में आपको कोई मैसेज भेज सकता है, आप मैसेज भेज सकते हो, ओके। सो जैसे कि ईमेल बॉक्स होता है आपका, सिमिलरली लिंक्डइन पे भी मैसेज बॉक्स होता है। तो सपोज दिस इज माय कनेक्शन नितेश, तो अगर मुझे इसको कुछ लिखना है तो आई कैन राइट, आई कैन अटैच अ वीडियो, फोटो, लिंक, एवरीथिंग। सपोज मैं कोई इवेंट कर रही हूँ, इफ आई एम डूइंग एन इवेंट, आई कैन सेंड टू माय कनेक्शन थ्रू दिस मैसेजिंग ऑल्सो इंडिविजुअली। तो दिस इज इन ब्रीफ अबाउट लिंक्डइन। तो अभी मैं इसको स्टॉप करके आई विल शेयर माय पीपीटी so that I will cover the points which are pending. Okay, are you able to see my PPT now? Yes. So we were on this point on the profile picture.
तो ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया. नाउ आई विल जस्ट टेल यू. तो कवर पेज मैंने जैसे बताया, बैनर जो पीछे फोटो के पीछे जो दिखता है वो बैनर होता है. तो ये कैनवा पे यू कैन डिजाइन दिस. एंड आई टॉक्ड अबाउट हेडलाइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. हु यू आर, who you help and how you help them. It is creating a first impression. तो अबाउट सेक्शन तक जो भी पार्ट है वो विजिबल होता है whenever you open a LinkedIn profile of any person. तो that creates a first impression. Now this is very important thing. बहुत लोग वो अपने फोटो में ही ऑप्शन देते हैं कि I'm open to job, I'm seeking job. So this is one tip that please do not write I'm actively seeking job. Even if you're looking for a job, please do not write this, because as it is, research says that always there are 90% of people who are looking for change. So every organization knows that, every HR knows that, so you need not write this, okay, because this actually somewhere hampers your image. फीचर्ड सेक्शन में मैंने बताया था कि पर्सनालिटी के बारे में आपकी पर्सनालिटी दिखाता है फीचर्ड सेक्शन. वहां आप अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हो. वीडियो, आपके यूट्यूब चैनल है तो वहां से कुछ वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं. मे बी यू आर एन एम्प्लॉय, आपको कुछ और ऐड नहीं करना, तो यूट्यूब में अगर आपका कुछ वीडियो है तो वहां पे ऐड करो. आपका कोई आर्टिकल है वो ऐड कर सकते हो. अगर आपका बिजनेस है तो आपके टेस्टिमोनियल आप ऐड कर सकते हैं, और वो चेंज कर सकते हैं बाद में. यू कैन ऑलवेज कीप ऑन एडिटिंग कि कब आपको कौन सा पार्ट बताना है. एक्टिविटी सेक्शन मैंने बताया, जो भी आप पोस्ट कर रहे हो वो दिखता है एक्टिविटी सेक्शन में. अबाउट सेक्शन में आपका स्किल्स, आपके अचीवमेंट्स, आपकी प्रोफेशनल समरी आनी चाहिए. और अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो कॉल टू एक्शन आना चाहिए. तो कॉल टू एक्शन कुड बी विजिट माय पेज, या कॉन्टैक्ट मी फॉर दिस, आई एम अ लाइफ कोच, यू कैन कॉल मी फॉर दिस हेल्प. तो कॉल टू एक्शन मतलब व्हाट शुड द पर्सन डू. देन एक्सपीरियंस आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट. अगर आप स्टूडेंट है तो मेंशन अबाउट योर इंटर्नशिप, दैट इज इम्पॉर्टेंट. मेंशन अबाउट योर मेंबरशिप. एंड यहाँ पर don't hide the organization where you're working, write the organization names, because sometimes competitors want to hire from particular organization. तो वहाँ पे ये आपके एडवांटेज में काम करता है. then education I have covered. now education, as I said, बहुत लोग सोचते हैं education क्यों लिखना है, कहाँ से. I write the education because alumni network say if you are able to get connected, that gives you an advantage. Like suppose I passed out from XISS, when I'm writing that and when I'm going to connect with somebody from the same institution, तो वो ये देखता है कि हाँ मेरे इंस्टीट्यूट से है इसीलिए वो कनेक्ट करते हैं. maybe the person does not know me, but because of the same college the person will connect, and that person can be a वो हो सकता है कि that person can be really on top of his career, who can help in your career. तो ये जरूर ऐड करें, because alumni से कनेक्ट होने में हेल्प करेगा आपको. volunteer experience मैंने बताया. फीचर्ड स्किल्स मैंने बताया कि 50 स्किल्स का ऑप्शन होता है, बट रेलेवेंट स्किल्स ऐड करें. कीवर्ड्स यूज करें, डोंट यूज एनी रैंडम स्किल. तो बी सेलेक्टिव अबाउट द स्किल्स ऑल्सो. मीडिया सेक्शन आई हैव टोल्ड. वॉलंटियर वर्क आई वाज टेलिंग, 41% of companies find volunteer work is important as a paid work, so important to mention. एंड रिकमेंडेशन भी, जिन लोगों से भी आपको रिकमेंडेशन मिल सकता है, सेलेक्ट द पीपल हु विल गिव रिकमेंडेशन फॉर यू. नाउ अकम्प्लिशमेंट सेक्शन, वहां पे जैसे मैंने बताया था पब्लिकेशंस, आपकी कोई स्पेशल प्रोजेक्ट, लैंग्वेजेस स्पीक, ये सब ऐड कर सकते हैं. ओपन टू वर्क फीचर, अभी एक फीचर होता है ओपन टू वर्क, जो कि सेटिंग में जाके यू कैन गो टू द सेटिंग एंड वहां पे इफ यू आर लुकिंग फॉर अ असाइनमेंट, वहां पे यू कैन डू ओपन, एंड वो किसको दिखेगा वो सेटिंग में आप कर सकते हो. यू नीड नॉट कीप इट पब्लिक, दैट कैन बी ओनली विजिबल टू अ रिक्रूटर. ओके, URL जो होता है ना उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं. एक बार इसको फिनिश करके आई विल शो दैट आल्सो. जो URL होता है linkedin.com/, तो जैसे मैंने अपना नाम रखा सिंपल जायसवाल, क्योंकि किसी को भी सर्च करने के लिए इजी होता है उससे. तो दैट आल्सो यू कैन डू, या फिर आपका बिजनेस नेम रख सकते हैं. डे टू डे मैंने जैसे बोला, आप पोस्ट कर सकते हैं, अपना पोस्ट कर सकते हैं, किसी का पोस्ट को लाइक और कमेंट कर सकते हैं. ये भी कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है. सपोज किसी दिन आपको कुछ भी पोस्ट नहीं करना, बट एटलीस्ट यू कैन गो एंड लाइक समबडी पोस्ट, उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, बिकॉज वो भी एक वे होता है कनेक्शन बिल्ड करने के लिए. आप रिकमेंडेशन दे सकते हो लोगों को विदाउट आस्किंग, ऑल्सो यू कैन गिव रिकमेंडेशन. You can write to people, because as I said there is a message box, there is option to message, so you can write. maybe आपके potential client होंगे, उसको आप मैसेज कर सकते हो, अपने सर्विसेज के बारे में आप उनको मैसेज कर सकते हो.
and you can add value in this platform for gaining visibility. If you are somebody who is wanting to establish yourself as a brand, तो visibility ये सब चीज आप everyday regular basis पे when you do, you are visible in that platform. So thank you so much. I will stop this share now. Yeah. So I've exceeded the time already. I'm so sorry, but we can take the question maybe later on after the second speaker, Yes, right? yes, please. Yeah. Well, a big round of applause for Simple Ji, who gave us a very, very detailed and a very comprehensive